जय गुरुदेव। आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं श्री सीताराम शर्मा जी का, जो कि एक सीईओ है इंटीग्रेटेड कोको कार्बन एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के। तो आप नारियल का पाउडर बनाते हैं और आप आर्ट ऑफ लिविंग के साथ 19 सालों से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम हर्षिता मारवा है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं कुछ महीनों से ही अभी आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ी हूँ। तो अब मैं आपसे पहला मेरा प्रश्न होगा, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं? हर्षिता जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। राजस्थान से एक छोटे से गांव पड़िहारा, चूरू डिस्ट्रिक्ट, जो बीकानेर, सालासर, चूरू के नजदीक है। अच्छा। वहीं मेरी 8वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव में हुई थी। उसके बाद मैट्रिक करने के लिए मैं दूसरे मेरे ननियाल चला गया, जसवंतगढ़। और मैट्रिकुलेशन करने के बाद मैं कलकत्ता आ गया। मेरी आगे की ग्रेजुएशन बीकॉम कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। वो मेरा भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज कलकत्ता से हुआ। और सिंस बिगिनिंग आई जॉइंड द सर्विस, मींस from at the age of, I was at that time age was 15 years. In 1974 I came to Calcutta after my completion secondary. और मैंने पहले दिन से ही वहां पर अर्न एंड एजुकेट योरसेल्फ, मतलब मैं डे आवर्स में सर्विस करता था और मॉर्निंग में कॉलेज करता था। और सिंस बिगनिंग वेरी फर्स्ट डेज आई रीच टू कलकत्ता, मैंने एक सर्विस ले ली। कितने रुपए की, कम भी थी उस समय, तो 175 रुपीज पर मंथ मिलता था इन द ईयर 1974। फिर मैंने 78 में ग्रेजुएशन किया कलकत्ता से और 1980 के अंदर मेरी शादी हो गई। 1974 से लेकर 1992 आई वाज अंडर सर्विस। अच्छा। मेरे 3 एम्प्लॉयमेंट रहे उस पीरियड में। 3 एम्प्लॉयर्स के अंडर में मैंने काम किया एंड आई गेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑल द फील्ड्स। अकाउंट्स, बेसिकली आई वाज एन अकाउंटेंट, accounts, sales, purchase. Then finally in the last stage of my career of 92, I was in the production of rotogravure printing industry. Then in 1992, I left the service and I started my own business of rotogravure printing in Calcutta. Okay. At that time, I used to cater all the biscuit manufacturers and tea packers. So that flexible rotogravure printing I started in Calcutta. In the meantime, I'm in a joint family. My 2 youngers are there. They have also come up. My second brother, we are 3 brothers. So second was that he shifted to Port Blair. Earlier, he was also in the service. Then he started his own business in Port Blair. From 1992 to 2010, journey was of my business and expanding and doing the business, looking after my brother's business, then expanding. Then the third younger brother has also joined us. Then other family members have also joined us in Port Blair and Calcutta. We have expanded the business. In 2010, वेस्ट से लेकर आप ईस्ट से आप सीधा साउथ में गए हैं, तो आपका काफी अच्छा एक जर्नी रहा है। हाँ, अब जर्नी तो अंडमान में स्टार्ट होता है। When I entered in in 2010, my brothers were doing very good in Andaman. They were having their own business. In Calcutta, I was doing, and I was used to help them in their business, also looking after the entire family also, because I was the eldest son in my family. So big responsibilities were there and liabilities were also there. So very nicely
I performed it. I enjoyed my entire this phase. In 2003, I came in touch with Sri Manojji Sharma of Calcutta. अच्छा जी. Then he told me about the art of living. अच्छा, मेरा अगला I प्रश्न have यही था taken, कि आप लिविंग से हाँ, कैसे जुड़े? 2003 से मेरा एक अलग शुरुआत हुआ. तब मैं उनके हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग के कांटेक्ट में आया. मैंने बेसिक कोर्स किया उस समय. बेसिक कोर्स जो अभी हैप्पीनेस कोर्स है, हैप्पीनेस कोर्स हम्म, किया. और I was so blessed after doing this course. Only after 3 months, Guruji came in Calcutta, and I did my advanced course with Guruji. ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है. SIV Srivas Stadium in Guruji. With Guruji, I did my first advanced course. And very immediately after that, I got another very nice chance doing DSN with Sri हम्म, Anand Rajendran, a big name of DSN. हम्म, So the bonding अच्छा, has become so nice that Guru's grace, I got this opportunity of advanced course and then at DSN course also. And अरे वाह, immediately, so immediately and frequently, then I did lot of advanced courses and also DSN 2-3 DSN I did. अच्छा, In 2010, my brothers told me to come to Andaman. I never thought that I will shift to Andaman because the good base was there in Calcutta. और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अंडमान में भी आऊंगा. ठीक है, मेरा बिजनेस था, भाइयों का बिजनेस था, कभी भी घूमने के लिए वो सब ठीक है, लेकिन एक बिजनेस पर्पज के कलकत्ता में बंद कर करके यहाँ आना कभी सोचा नहीं था. ओह, अच्छा नहीं तो था. यहाँ हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुरुदेव लेकर जी के की आए थे ब्लेसिंग थी अंडमान. आपके पास, गुरुदेव जी की ब्लेसिंग्स आपके पास थी, तो आपके लिए उन्होंने एक राइट डायरेक्शन सोची हुई थी, तो मे बी करेक्ट है उनका कि ही पुल मैंने था जो आप अंडमान में आकर रिलोकेट होकर आपने पूरा अपने आप को एस्टैब्लिश किया. मेरे सब दोस्तों ने मना किया, भाई इस एज में कहाँ जाओगे. टुडे आई एम एट 63. ओके, so if you calculate the reverse, only 11 years back, I was 52 years old at that time. कोई भी आदमी कैरियर शिफ्टिंग और नया कुछ शुरू करने का नहीं सोचता. बिल्कुल. और मेरे सारे रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल और आर्ट ऑफ लिविंग का सर्कल भी सारा का सारा वेस्ट बंगाल कलकत्ता में ही था. Even then, I taken the chance to do something new. Maybe something is there. Someone is calling me. Definitely. बिल्कुल जी, बिल्कुल. तो हम अंडमान आ गए. अंडमान में कुछ प्रोजेक्ट बड़े-बड़े लेके आए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए. तो फाइनली आपको हम अंडमान में चैलेंजेस दो फेस करने पड़े, तो अपने बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आपने बिजनेस वहाँ पे करेक्ट बहुत सेटअप किया चैलेंजेस था. थे. 3 साल हम लोग बहुत ही चैलेंज फेस किए. वो पहले 3 साल हम्म, बहुत ही डिप्रेसिंग के ही थे. लॉसेज भी बहुत हुए. लेकिन ओके. फाइनली with the Guru grace, we overcome about all the problems. And by 2016, we settled well. And again, a period came where I have to leave that partnership. अच्छा. 2016 में जो एक पार्टनरशिप शुरू की थी कोकोनट बिजनेस की, 2011 to 2016, वो वहां से भी हमको निकलना पड़ा. ये जो पीरियड था अभी यहाँ का, उस समय निकलना और फिर कुछ नया सोचना, अगेन दैट वाज वेरी टिपिकल. और उसमें बहुत सारा टेंशन भी था कि क्या करना चाहिए, अब कलकत्ता चला जाना चाहिए कि यहीं कुछ करना चाहिए. फाइनली आई वेंट टू कलकत्ता. और मैं कुछ आश्रम गया, आश्रम से रामेश्वरम गया, वहां से कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम सब जगह घूम घाम के फिर कलकत्ता आया. कलकत्ता ने से मेरे को एक कंपनी का ऑफर मिला, भी ये कंपनी बंद पड़ी है, आप इसको चला सकते हो तो चला लो. जिसका अभी हम लोग बात करें, इंटीग्रेटेड कोको कार्बन एंड एग्रो प्रोजेक्ट. ये एक इंटीग्रेटेड कोकोनट की यूनिट है जिसके अंदर में कोकोनट पाउडर बनता है, चारकोल बनता है, इसके अंदर में ऑयल बनता है, इसके अंदर में खोपरा बनता है, इसके अंदर कोयर भी बनती है. So the entire product of coconut are being manufactured here, but it was cut down for the reasons it was in losses and nobody was there to look after, to revive it. It was a big challenge for me.
but I have taken the challenge. मैंने देखा कि गुरुजी ने जब मेरे को एक बार अंडमान भेजा है, ये दूसरा ऑफर भी गुरुजी ने ही भिजवाया। क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को ये चैलेंज ले लेना चाहिए। भाइयों से बात की, सब बोले नहीं नहीं ठीक है, आपने 5-6 साल इस लाइन में काम किया है, सब कुछ जानते हैं, तो फिर एक्सेप्ट इट, हम लोग तो सब हैं ही, कोई परवाह नहीं, करिए। अच्छा। तो ये कंपनी को मैंने 2016 से रिवाइव शुरू किया। इसका फर्स्ट फेज में डेसिकेटेड कोकोनट को मैंने रिवाइव किया, सेकंड में फिर ऑयल को रिवाइव किया, थर्ड के अंदर में बाय 2018 ऑल द 3 यूनिट्स आई रिवाइव्ड इट, और वो सारा अच्छा करने लगे। और अभी कोयर यूनिट है जिसको अभी रिवाइव करना है, तो इस साल बाय एंड ऑफ जून आई फील दैट बाय गुरु ग्रेस वो भी चालू हो जाएगा। तो सबकी अभी हम विशेष आपके मेरे साथ में अभी 60 families are employed, 60 persons are employed, direct employment, और करीब 200 families indirectly सपोर्ट के साथ में है, कनेक्टेड है। तो इतने अभी मेरे को यही खुशी है कि मैं जो दोबारा दूसरे फेज में जब वापस अंडमान आया, तो इसके वजह से जरूर गुरुजी ने मेरे को कुछ न कुछ करने के लिए भेजा है। ऑटो प्लेइंग से मुझे तो ना जुड़े आपसे हुए एक चीज दिमाग में आ रही है, जब आप अपनी जर्नी बता रहे हैं, मुझे ये बताइए, जब आपका वो जो एक डाउनफॉल वाला टाइम था, तब आपको कुछ अपने बीच में नेगेटिविटी या कुछ वो फील होती थी, या क्योंकि आपने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया हुआ था, तो आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही थे, आप उसमें खुशी के माहौल, मतलब आपको लगता कि सब ठीक होगा? एडवांस कोर्स में बैठ गया। हाँ जी। जैसे ही हुआ, मैं आश्रम जाकर के एडवांस कोर्स में बैठ गया। मैंने सोचा अभी जो टेंशन इतना है ना, कुछ न कुछ वजह से रास्ता निकल जाएगा। एडवांस कोर्स खत्म करके मैं रामेश्वरम त्रिवेंद्रम चला गया, और वापिस जब तक कलकत्ता आया तो वहां पर रास्ता तैयार मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप रास्ता ऐसा पॉजिटिव तैयार रहे। मिल गया, और जिस कंपनी के लिए जहां से मेरे को ऑफर मिला, हालांकि ये कंपनी बंद पड़ी थी जिसको रिवाइव किया गया, इस बंद को पहले भी मैंने इसको लेने की चेष्टा की थी, उस समय नहीं मिली मेरे को। दूसरी बार जो मिली तो उधर से ही ऑफर आया कि नहीं आप इसको करिए, हम आपके साथ हैं, आप इसको। तो अब आपको लगता है कि तो आप इस एक तरह अच्छे लेवल पर आ गए हैं, जो आपके वो टाइम था, और इस जो आप कलकत्ता में थे और आप यहाँ पर हो, तो आप अपने उस लेवल पर आ गए हैं वापस, उससे भी आगे निकल गए हैं। नहीं, आज मैं बोलूंगा कि दिस इज 63 एज, गवर्नमेंट के हिसाब से रिटायरिंग एज हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है। बिल्कुल। And at this stage, I am really very much enjoying my work. Whatever you're doing. Very much I am enjoying work. There is no tension. काम होता है ठीक है, नहीं होता है ठीक है, बाजार खराब है ठीक है, अच्छा है वो भी ठीक है, बट अभी ऐसा हो गया कि इतना एक्सपीरियंस होकर के ऐसा हो गया, कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आज खराब हो तो कल ठीक हो जाएगा, और वो हो भी जाता है। एक मुझे लगता है जब हम वो सोच के साथ चलते हैं तो हमेशा अच्छा ही होता है, अगर हम उसको अच्छा लेकर ही हो बैठ रहा जाते है, अच्छा ही अच्छा से होगा, अच्छा से और अच्छा रास्ते खुलते एक्सपेंशन हैं। हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन कर रहा हूँ, और नया एक्सपांशन हो रहा है, नए नए थॉट्स आ रहे हैं, और फिर ये आपको सारे कॉन्टेक्ट्स आपके यूज होते हैं, आपका एक्सपीरियंस यूज होता है, आपकी एज भी काउंट होती है कि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल विजन बिल्कुल। को आपके फिर लोग दूसरे भी एक्सेप्ट करते हैं इसको। आज मुझे लगता है हम आपका इंटरव्यू इसीलिए ले रहे हैं, इतने सारे लोगों में से अगर हमने आपको चुना है तो हमने इसीलिए चुना है क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, आपकी मेहनत का फल है, आपकी पेशेंस का फल है कि आज हम या मैं यहाँ बैठे हुए आपसे बात कर रही हूँ कि आप डिजर्व करते हैं कि हम आपसे सीखें। तो मैं उससे उस क्वेश्चन पे आना चाहती हूँ कि जो हमारे नौजवान है, आजकल की युवा पीढ़ी है, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि हमें सर्विस में जाना चाहिए या हमें बिजनेस में आना चाहिए? अगर बिजनेस में आना है तो कब आना चाहिए, क्या करना चाहिए? उससे रिलेटेड आप मुझे कुछ बताएं। देखिए, हम जहाँ से निकले, हमारी फैमिली निकली, कहीं भी कोई सपोर्टिंग कुछ नहीं था। ऑलवेज दैट ओनली थिंग वाज पॉजिटिविटी। मेरे फादर ने भी एक कहा, जो तुम्हारी मर्जी है कर, लेकिन अच्छा करना।
कुछ बहुत गलत अच्छा। मत करना। मेरे फादर ने हमेशा यही कहा, और मेरे से जो सपोर्ट चाहिए वो तुमको मालूम है कितना सपोर्ट मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सब समय तैयार हूँ। अच्छा हम्म, ये है कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले, जो ऑलवेज कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, जो कुछ भी मैंने किया उन्होंने सपोर्ट किया। हम तीनों भाइयों ने जो कुछ भी किया उसमें सब साथ में थे। हमने कहा पिताजी आपको अभी अंडमान में रहना है, अभी आपको कलकत्ता में रहना है, हम लोग के साथ रहेंगे तो हमको टेंशन कम रहेगा। बोला हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ नहीं तो क्या आदमी बोलता है मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम हो जाती। हम लोग को इस तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं है। नहीं है जिसको जहाँ उल्टा शिफ्ट करना है, बच्चे सारे मेरे भाइयों के मेरे पास पढ़ते थे कलकत्ता में। और मतलब इस तरह का एक बहुत ही अच्छा सुंदर परिवार और वातावरण मिला कि जो आगे बढ़ने के लिए सहायक होता है। दूसरी हार्ड वर्क, आपको कुछ भी सक्सेस के लिए हार्ड वर्क तो पहली चीज है जो आपको करनी पहली पड़ेगी। चीज फैमिली और सपोर्ट एंड एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क दोनों फर्स्ट थिंग आपके इज साथ। हार्ड वर्क, और फैमिली सेकंड थिंग सपोर्ट आपको मिलेगा कब अलग बात है, आपको करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। परिणाम क्या होगा वो आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। सकते हैं। तो पहला हार्ड वर्क, दूसरा आपको कर्म करना पड़ेगा, और आप एक्सपीरियंस लेकर के कर्म करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। यंग जनरेशन को मैं यही कहूंगा कि आप एम्प्लॉयमेंट देने वाले बनिए, एम्प्लॉय बिल्कुल बनने की चेष्टा कम करें। बिल्कुल। कल मेरे यहाँ पर आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ, कल मेरा यहाँ अंडमान में पूरा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स की विजिट थी। उसके अंदर अच्छा। में 100 न्यू एंटरप्रेन्योर्स आए थे। ओह कल पूरा वो लोग यहाँ अपनी फैक्ट्री देखने के लिए आए थे। उन्होंने भी यही पूछा, सर आपने कैसे किया, और एट दिस एज आप इतने एक्टिव हो क्यों। मैं उनसे आगे चल करके दौड़ दौड़ के सब चीज समझा रहा था, दिखा रहा था। लेडीज लोग भी बहुत थी, हाँ, यंग लेडीज भी थी, यंग जनरेशन के बच्चे भी थे, और सारे ये जानना चाहते थे हम लोग को क्या करना चाहिए। मैंने उनको भी यही कहा, एम्प्लॉयमेंट देने वाले बनो, आपको बहुत खुशी होगी। खुशी होगी बिल्कुल। देखिए एम्प्लॉय, आप एक एम लेके चलो तो मेरे को नौकरी करनी है, आपका अकेले का परिवार चलेगा, देगा बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है ये। आपकी अकेले का परिवार चलेगा। आप ये सोचो कि मेरे को कुछ करना है तो कम से कम 2, 3, 4, 7, 8 जिस तरह की आपकी कैपेसिटी, उस तरह के परिवारों को आप अपने साथ जोड़ पाएंगे। चाहिए। आपका वो जो प्रोमो मैंने देखा था उसमें जो आपकी फैक्ट्री में वर्कर्स को देखा जहाँ पे वो डांस कर रहे हैं, वहां पे जहाँ पे पूजा हो रही है, मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई एक फैक्ट्री वर्कर्स नहीं देख रही हूँ, मुझे ऐसे लगा मैं एक फैमिली देख रही हूँ। और आप ये जो मतलब मैं एक नई हूँ, मतलब मैंने कभी भी नहीं देखा था, बट मेरे लिए वो एक फैमिली ज्यादा थी रादर देन एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। वहां पर वो नहीं दिखाई दे रहा था। तो मुझे ये समझ आ गया था कि आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं जो अपने वर्कर्स को भी अपना फैमिली समझकर उनके साथ उनको साथ लेके चल रहे हैं। हर महीने मैडम हम लोग कुछ न कुछ इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं अंडमान में। देखिए बाकी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है, अच्छा। तो लेबर लोगों के साथ में सैटरडे मंथ के एक दिन कुछ न कुछ हम लोग ऐसा कर करके एक नाश्ता उनके साथ बैठ के करना। और वो जो विश्वकर्मा पूजा की दिन की बात थी वो, तो ये मैंने हाँ पहले जी। एक बार उनसे बात की थी भी, कुछ हम लोग स्पेशल करते हैं। विश्वकर्मा पूजा तो सब मनाते हैं, आकर के खाना खा के चले जाते हैं पूजा करके। हम्म। तो वाई डू समथिंग, बच्चों को लाइए, क्रिएटिविटी, बच्चों से डांस कराते हैं, हम लोग करेंगे, हम भी पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा फैमिली पूरा पार्टिसिपेट करता है उसमें, और हम लोग, मेरा पूरा फैमिली आकर के सबको खाना खिलाता है। अरे वाह। हम तीनों भाई इधर ही है, तीनों भाइयों का सारा परिवार, उनकी बहुएं भी आ गई, अभी बच्चे आ गए हैं, तो मेरी फैमिली के 20 मेंबर रहते हैं। अच्छा। तो सब मिलके उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ बैठ करके वो इवेंट में खाना खाते हैं हम लोग। तो उनको ऐसा नहीं होता है कि वो लेबर है हम लोग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रेरणा आपको मैं बताता हूँ, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है मोहन इम्पैक्स कलकत्ता। अच्छा जी। ये मेरा जो सेकंड फेज शुरू हुआ उनकी वजह से शुरू हुआ, नहीं तो मैं अंडमान में नहीं आता। उनके एक डायरेक्टर हैं, दोनों भाई है, अजय जी खंडेलवाल और श्री सुजय जी खंडेलवाल। तो दोनों हम्म। से मेरा इतना घनिष्ठ संबंध है।
उनको जब पता चला कि मैं उस पार्टनरशिप से निकल गया हूँ, तो उनको बहुत दुःख हुआ। तो सुजय जी खंडेलवाल बोले, शर्मा जी आपको ये नारियल का बिज़नेस छोड़ना नहीं है, हम आपको छोड़ने नहीं देंगे। आपको कुछ न कुछ करना है, फिर कुछ नया करना है आपको। ये आप दिमाग में रख के चलिए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जो रिलेशन हम लोग का बॉन्डिंग हो गई है, उस रिलेशन को हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो सेकंड फेज और वो इवेंट के लिए मेरे को प्रेरणा वहां से मिलती रहती है। मैं मोहन इम्पैक्ट्स के प्रोग्राम्स में जाता रहता हूँ, वो लोग साल में 2-3 प्रोग्राम करते हैं और वो इसी तरह की एक बॉन्डिंग करते हैं अपने सप्लायरों के साथ, अपने चैनल पार्टनर्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ। तो ये प्रेरणा मेरे को वहां से मिली और वो इतने एक्टिव और डायनेमिक है। मैं यही कहूंगा जो मेरा सेकंड फेज चालू हुआ है वो उनकी वजह से हुआ, नहीं तो मैं वापस कलकत्ता जाकर के अपना रोटोग्रेवियर बिजनेस चालू करता। हालांकि रोटोग्रेवियर बिजनेस मैं अभी भी चालू करूंगा पुराना बिजनेस तो अभी भी चालू करूंगा, लेकिन मैं ये वापस दोबारा कोकोनट बिजनेस में नहीं आता। इसका सारा का सारा श्रेय हमारे मोहन इम्पैक्ट से श्री अजय जी खंडेलवाल और सुजय जी खंडेलवाल को जाता है कि उन्होंने इतना मेरे को पुशअप किया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, सब के लिए हम तैयार हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप हमको बोलिए और आप कोकोनट बिजनेस आपको करना पड़ेगा। तो आज हम आपको लोग हम्बल सबके जहाँ से शुरू किया था, हम लोग 3 फोल्ड बिजनेस कर रहे हैं। आप एक्सपोर्टर्स भी हैं, आप इंपोर्टर्स भी हैं, आप एक्सपोर्ट भी करते हैं? नहीं, एक्सपोर्ट अभी तक नहीं किया कि मेरा सारा माल मोटा-मोटी कलकत्ता में मोहन इम्पैक्ट्स में ही चला जाता है। कुछ बचता है वो कभी दिल्ली, कभी सूरत, कभी दूर राजस्थान, यहाँ पर देते रहते हैं। लेकिन अच्छा जी। 70-80% सारा का सारा माल कलकत्ता में वही लोग का कॉन्ट्रैक्ट है, आप पहले मेरे को फीड करिए, उसके बाद दूसरे को दीजिए। ये आपकी हम्बलनेस है, आप उनको इतना ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं और मतलब मुझे नहीं, लगता है उनको कि जिसने छाती पे हमें ऐसे किया है मिले, तो ऐसी हमें कोई उनको बात हमेशा नहीं। याद रखना चाहिए। और मतलब मुझे लगता है ये भी एक हमारी बहुत आपकी सादगी है और सिंपल है कि आप इतना अच्छे से उनको ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और उनको हमेशा याद रख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जो जिसकी वजह से जैसे है, हम्म। उनकी वजह से मैं कोकोनट बिज़नेस में आया तो वो हमारे पहले मित्र थे जो मेरे को बुलाए थे, श्यामल चौधरी, यहाँ के हैं। उनसे मेरी अच्छा। बाद में 5-6 साल बाद में पार्टनरशिप टूट गई, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी हम लोग फ्रेंड हैं। वो भी इसी बिज़नेस में है, मैं भी इसी बिज़नेस में। बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, सबका ही चलेगा। और अच्छा है कि हम लोग ग्रो दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं। ये भी एक कंपटीशन मत समझिए बट ग्रोथ समझिए। आप yes, उसको if it कंपटीशन is मत a healthy समझिए। competition, it will always grow. बिल्कुल बिल्कुल। This ये हम give you उसको the strength to grow. आपको बढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा हो जाता है आपको बढ़ना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा। आप बढ़ाना ही दौड़ में पड़ेगा। पीछे नहीं कर सकते। और आपको जब लगता है ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 200 फैमिलीज है, वो 70 फैमिलीज हैं जो मेरे साथ हैं, जो 200 फैमिलीज हैं जो मेरे से इनडायरेक्ट है, तब आपका विजन Exactly. आपको रिस्पॉन्सिबल और बनाता है कि भाई मेरे को उनके लिए करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए तो करना ही करना है, बट वो भी मेरी एक एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उनका भी साथ आपको तभी मिलेगा जब आप उनका इतना ध्यान रखेंगे और आप उनके बारे में सोचेंगे। मेरे 3 बेटियां हैं हर्षिता जी, अच्छा। तीनों वेल सेटल्ड है, सबकी शादियां हो गई, नाती पोते भी हो गए। अरे वाह। अभी वो बोलते हैं कि पापा आप क्या अंडमान में क्यों बैठे हो? मैं कहा देखो बिल्कुल। पहले तो अर्निंग के लिए थे, अब मेरी जिम्मेदारी दूसरी हो गई है। दूसरी हो गई है। हाँ, अब मैं अभी पहले मैं सोचा था कि 2-3 साल बाद बाई 2020 आई विल बी एट कलकत्ता। जब मैं गया था तो मैं ये सोच के गया 2020 तक कलकत्ता में वापस आ जाऊंगा। लेकिन अब मैंने उनको बोल दिया अभी मेरे को यहीं रहना है, अभी इतनी जिम्मेदारी ले ली ना, इन बिल्कुल सब की बिल्कुल। जिम्मेदारी है, जब तक इनको किसी कोई न कोई संभालने वाला नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं आऊंगा। बिकॉज आई एम आप किसी को तैयार एंजॉयिंग कर नाउ। रहे हो, आप किसी को तैयार हाँ, कर रहे हो कि कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और बच्चे आ रहे हैं, करेक्ट, बच्चे आ रहे हैं, संभाल रहे हैं, देखते हैं, संभाल रहे इंटरेस्ट भी लेते हैं। अच्छा, हैं। सबको माहौल बहुत अच्छा लगता है ना, वैसे यहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा जी। बट मैं अंडमान इज हमें ए ना वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और इट यहाँ इज पर
लोग बीमार क्यों होते हैं मेरे को नहीं पता, मैं तो यहाँ पर कभी, मेरे को नहीं पता मैं कभी बीमार हुआ हूँ, टेबलेट भी खाई है मैंने। अच्छा, टच वुड। 11 साल से हो गए हैं। आई मतलब लव दिस दिल्ली प्लेस, से, इट्स दिल्ली से ब्यूटीफुल। अगर अंडमान के बारे में सोचे तो मैं बहुत दूर लगता है, और लगता है कोई लाइफ बहुत स्लो होगी वहां पर, अलग है, दुनिया से कट ऑफ है। मतलब एक जो सोच आती है अंडमान के बारे में, हमें वो आती है। नहीं, कभी कभी अर्षिता जी ऐसा होता है, हालांकि अभी तो देखिए फ्लाइट्स वगैरह हर जगह से डायरेक्ट फ्लाइट भी हो गई है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी फैमिली में इतनी अर्जेंसी आ गई, दोपहर बाद में आप फ्लाइटें नहीं, आप सेम डे पहुंच नहीं सकती, नेक्स्ट डे इवनिंग से पहले 40 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकती, उस समय लगता है हम लोग रिमोटेस्ट पार्ट में हैं। बिल्कुल, जहाँ पे कुछ आपको अच्छा सीख रहे हो तो वहाँ पे बुराई, दोनों चीजें साथ चलती है। थोड़ा सा तो आपको है, और यहाँ का जो एयर फ्रेट है काफी महंगा चलता है, बीच बीच में बहुत ही महंगा हो जाता है, 30, 40, बहुत ही महंगी। 50 हजार रुपये तक चला जाता है। उस समय अगर किसी को ट्रेवल करना होता है, मे बी मेडिकल और मे बी सम फैमिली फंक्शंस और अदर्स, उस समय लगता है यार कहाँ आकर के फंस गए हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए मतलब अंडमान का अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे वही आता है, थॉट आता है नहीं, कि बहुत अंडमान के दूर। बारे में पहला सोचते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा काला पानी क्या। काला पानी मैं वो यूज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब वो हमारा तो काला फर्स्ट पानी थॉट तो वही नहीं था। है देखिए, अब नहीं रहा, बट इट इज अ ब्यूटीफुल काला आइलैंड पानी बिल्कुल नहीं रहा। ये एक बहुत ही टूरिज्म की शानदार डेस्टिनेशन बन गई है। बन गई है, हालांकि राइट। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में ट्रेडिंग इधर अच्छी है, टूरिज्म के लिए अच्छा है, बाकी इंडस्ट्रीज के लिए जैसे कोकोनट है ठीक है, सो लेकिन हम्म वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेबर प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल प्रॉब्लम्स है, और सब हमको बहुत ही फेसिंग है। सारे लेबर हमको मेनलैंड हम लोग बोलते हैं दिल्ली कलकत्ता, वहीं से अच्छा। लाने पड़ते हैं। लेबर यहाँ अवेलेबल नहीं है, और रॉ हम्म, मटेरियल की भी प्रॉब्लम रहती है, हम्म, क्यों अंडमान छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है, बटा हुआ एक है, जगह बिल्कुल। आपको ये क्वांटिटी नहीं मिलती, और एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक ही साधन है, वाया शिप। वाटर, हाँ, तो वाटरवेज वो है। अभी क्लाइमेट कब या बदल जाती है कोई ठीक नहीं है, तो चलते हम्म, चलते बंद हो जाता है, तो ये वहाँ पे तो इंडस्ट्री के लिए बहुत सा माइनस पॉइंट है। साइक्लोन्स एंड सुनामी का भी सुनते रहते हैं, सुनामी तो साइक्लोन्स हाँ, का तो भी सुने देखिए दुनिया में एक ही बार आई वो, हैं। तो एक ही बात, उसके पहले जानते वो नहीं याद थे, है। अब नाम इतना फेमिलियर हो गया कि दोबारा अभी तक कहीं आई नहीं। अच्छा। आनी भी नहीं चाहिए, सुनामी आनी हाँ, भी नहीं नहीं आई चाहिए। तो अच्छा है, डिसास्टर्स है, नेचुरल कैलेमिटीज है, नहीं जी। आने से अच्छी है। अब आप मुझे, वापस हम अपने इंटरव्यू पे आते हैं, आप मुझे बताइए कि आपका बाकी सब लोगों के लिए क्या संदेश है टू कंक्लूड द इंटरव्यू। आप मुझे दीजिए कोई एक अच्छा सा संदेश दीजिए जो हम सबको मोटिवेशन में दे, और आपकी गुड वाइब यही हमें कहूंगा, आए। जो भी आप करते हो एंजॉय द वर्क, जो भी एंजॉय आप द वर्क। करते हो उस काम को एंजॉयमेंट के हिसाब से करिए, आनंद की अनुभूति सब समय रखिए, उसको टेंशन में मत लीजिए। डोंट बी सीरियस, ऑलवेज बी सिंसियर टू ऑल द थिंग्स। जो भी आप करते हो बी सिंसियर, नॉट सीरियस। टेंशन में रह करके काम नहीं करना, एंजॉय करेंगे तो ऑलवेज वो काम परफेक्शन में ही जाएगा, और बहुत अच्छा अचीवमेंट है। भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी। बिल्कुल, खुशी जब आप शुरू से ही करेंगे तो एंड तक तो आपको बहुत ही खुशी मिल, आनंद आएगा ही आएगा। तो बहुत आनंद अच्छी देखिए, सोच काम है। को आपको करना है, ये करना है, अगर मैं इसको रो के करूं या हंस के करूं, करना जो तो है, काम मेरे को बिल्कुल करना है, जब मैंने जिम्मेदारी लिया वो मेरे को करनी है, तो व्हाई नॉट टू डू विद द हैप्पीनेस। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत किसी के अच्छा साथ लगा, अगर रहना है बहुत तो उसके कुछ साथ अच्छे से रहना है, रहना तो पड़ेगा। आप मुंह फुला के रहो या खुश होकर के मुस्कुरा हंसते के हुए रहो। नहीं। बिल्कुल। आर्ट मुझे ऑफ आपसे बीइंग बहुत गुरुजी ने कुछ हमको सीखने को गुरुदेव मिला। ने इतना तो सिखा दिया कि ऑलवेज स्माइलिंग। लोग आपकी स्माइल से ये उनको इस तरह लगने लगे कि ये इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, क्या मिला है इसको, इसको क्या है, बिल्कुल। इसको ऐसा क्या मिला है कि इतना क्यों मुस्कुरा रहा है भाई। आपकी इतनी अच्छी गुड वाइब्स मैंने रिसीव की हैं, और मुझे लगता है कि वो मैं आगे भी लोगों को पकड़ा दे सकूं। तो मुझे आपसे बात करके सच में आपका जो एक डेडिकेशन और मोटिवेशन है ना, वो अनलिमिटेड है। एंड कंटिन्यू टू मेंटेन योर गुड वाइब्स एवरीवेयर, जस्ट कीप नहीं स्प्रेडिंग अर्षिता जी, दोस। मेरे को तो लगता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है,
बहुत छोटा सा किया है, आर्ट ऑफ लिविंग में भी बहुत थोड़ी सी सेवा की है, मुझे को बहुत करना चाहिए, मैं बहुत कुछ कर सकता था। ऐसा ही लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को बहुत कुछ करना भी है और करना भी चाहिए था। अभी भी ऐसा लगता है, कभी-कभी लगता है अरे मैं तो ये कर सकता था, क्यों नहीं किया अभी तक? कोई किसी भी काम करने में कोई देरी नहीं होती सर, मुझे लगता है अगर आप अभी भी चाहते हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं। कोई किसी भी काम के लिए कोई एज लिमिटेड नहीं होती। अगर आपके मन में आ रहा है तो आप पक्का करेंगे और आपको थोड़े किसी दिन भी पहले चीज का मैंने regret नहीं होगा। एक वीटीपी का प्रोग्राम आया था। हाँ जी, वॉलंटियर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है आर्ट ऑफ लिविंग में। हाँ जी। तो टीचर बनने की एक पहली सीढ़ी है। हालांकि मैंने सोच रखा है कि मैं अभी इस एज में टीचर बन के क्या करूंगा, नई पीढ़ी को आने दो ना। हम्म। एक्सपीरियंस तो इतना कर दिया कि टीचर जैसे तो है ही, ऐसी क्या बात है। सर लेकिन कई तो वो होता है जो उन्होंने एक्सपीरियंस और गुड उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि मैं उस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्ट बन गया और वो इतना अच्छा लगा मेरे को कि नहीं ये भी करना चाहिए, आदमी को काम सब करने चाहिए, चाहे आप उसमें आगे की डिग्री तो होनी चाहिए, आप इसको यूटिलाइज करते हो, कभी न कभी वो यूटिलाइज हो ही जाती है, अनचाहे में ही हो जाती है। हो ही आपका जाता एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है, कहीं न कहीं आपको आएगा, काम आएगा। है। तो गुड एक्सपीरियंस आपको कलेक्ट करते रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतना हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। ऑल द थैंक यू बेस्ट सो एंड मच जय जी। गुरुदेव। जय गुरुदेव। नमस्ते, जय गुरुदेव।